Hello, good morning student. Today we are going to start our new chapter, that is lenses. Including this chapter, what we learn here. Actually, we have see the consisting point, what we learn here. Yes, there are three points we have focused on it. Number one, that is a lenses. After then, difference between the mirror and lenses. And next one is the type of lenses. Yes, we have learned this small unit from this lesson. So let us start. We have learned about the uses of lenses. Uses of lenses. So lenses are used in a different purposes of our day-to-day requirements. Yes, and it is used for making the different kind of optical devices we have used in our day-to-day life. Out of them I have tried to show some optical devices on the screen. This is a one optical device. Can you name it? Yes, it is a camera. Actually friends, such a camera I have shown here, those camera, yes, it is totally constructed by using the lenses here. There are different lenses are adjusted into this camera and it is used for the use, yes, which purpose? That is a photography purpose. Yes, okay, and it is very important is in our day-to-day life. Yes, okay, it's become one common. Yes, photography. So for the cameras, yes, for its making using the different kind of the lenses here, it's just one common use. After that I have shown the another picture, that is a microscope. Where are used the microscope? They are used in a, yes, a laboratory. Yes, okay, for carrying the different kind of experimental study. We have observed the, that is a anatomical structure. Yes, okay, as well as the internal section. We have learns and learn the minute accurate study is to observe the cell, yes, as well as the different kind of the purposes. We have used the microscope in a laboratory here, and then in that microscope also use the lenses are there, and the lenses have a different magnifying power. The lenses have a different magnifying power. Okay, after that I have shown the next picture. It is a spectacle, our spectacle. It is a totally, yes, okay, related to you or the it is a common to you, है ना। अभी देखिए बेटा, हम बहुत तादाद में देखते हैं कि यस, हर एक बच्चों में अभी ये जो डिसऑर्डर होता है, आई का डिसऑर्डर्स ऐसे होते हुए दिखाई देते हैं, और इसको हमें कम करने के लिए हमें डॉक्टर के द्वारा यस हमें कुछ सजेस्ट किया जाता है, कुछ लेंसेस दिए जाते हैं, और उसी लेंसेस को लेकर हमारा जो आई डिफेक्ट होता है हम उसको क्या करते हैं बेटा, उसको कम करने का प्रयास करते हैं या कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और वो डिफेक्ट दूर करने के लिए वी हैव यूज द lenses, just okay, and with the help of the lenses we have make the spectacle, we have make the spectacle here. अभी देखिए ये लेंस ऐसी होती है, मैंने इस पिक्चर में बताया है। एक्चुअली इसी लेंस को यूज करके जो अपने आई डिफेक्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आई बॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और इस आई बॉल को, इसमें जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, वो डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे हमें एडजस्ट करने के लिए, जो कुछ भी जो डिसऑर्डर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें लेंस को यूज करके हमें वो डिसऑर्डर क्या करते हैं बेटा, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एंड फॉर इट्स वी हैव यूज्ड द lenses and make the spectacle. Yes, it's a common to you all. Just okay, so these are some examples. देखिए बेटा, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है
कि give the some uses of lenses. It's a very important here. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है. It may be asked in exam. It's a very important. Here we have learned about the mirror and lenses. So we have let us to try study some distinguishing features, distinguishing characters of the mirror and lenses. So I have taken two column, one side mirror and another side lenses. Actually for their distinguishing characters I have take their some diagrammatic representations of the mirror and the lenses here. So it is easy to identify mirror and the lenses. Actually how we have identified mirror? Yes, means the mirror one side is a totally coated and one surface is a reflecting, means the mirror is a reflecting plane surface, and lenses, yes, they are the transparent. Actually they are made up by the two surfaces, and both are, that is a mirror and lenses, they are the, yes, they are the forms of a sphere. They are obtained by the sphere here, means the mirror we have obtained by the sphere, means it is a part of sphere, and lenses is also part of a sphere. But mirror is a one surface is a, that is a reflecting, and opposite surface is a same opposite surface is a coated there by lead oxides. This okay, and lenses are the totally transparent. So actually in mirror side I have shown two mirror, that is one concave and convex. How we have decided which is the concave and which is the convex? Concave means that inner surface is reflecting and outer surface is coated. Convex means that is outer surface is reflecting, inner surface is coated. Yes, and it is easy we have identified the mirror. Yes, okay, and this coating surface, yes, is indicated by the, that is one have a lining marks there. We have learned in our previous standard. This is the indication sign of the mirror. Again lenses. Actually I have shown some, that is a diagrammatic representation of the lenses. A lens is a transparent. लेंस कैसी होती है बेटा यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट. यस, एंड इट इज अ मीडियम. एक्चुअली इट्स वन हैव अ मीडियम, ग्लास इज वन मीडियम देयर. ठीक है, एंड दीज टू मीडियम्स, टू surfaces of a sphere, they bound two with each other, they bounds, and that bounding surface forms lenses, transparent. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूनिक मीडियम बनता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं. यस, एंड दिस लेंसेस, यस, विच हैज अ टू स्फेरिकल सरफेस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. यस, ओके, एंड विच आर पफ्ड अप. इसको क्या किया जाता है बेटा? ऐसा पफ्ड अप. यस, ओके, दैट इज आउटर इज कॉल्ड एज अ, जैसे आउटर होता है तो दैट इज अ कॉन्वेक्स. यस, जैसे ऐसा होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, जैसे हम समतल बोलते हैं इसको, और जैसे ऐसे होते तो उसको हम डबल क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स बोलेंगे. एज वेल एज ऐसे होते हैं तो दैट इज अ कॉन्केव, अंदर से, है ना, दैट इज अ डबल कॉन्केव, और ऐसा यहाँ पे प्लेन कॉन्केव. तो ये देखिए हमने पहले पढ़ा है, इसलिए इसको डिटेल्स में जाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना, तो एक्चुअली उसी को लेकर हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? यहाँ पे we have distinguish, we have easily identify, yes, which is the mirror and which is the lenses here. It's easy one there. Again we have take there simply some points here. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके कुछ points learn करेंगे. It's very important here. So one related to the mirror. Yes, it is a one surface. देखिए बेटा, मिरर का क्या होता है? यहाँ पे एक सरफेस,
यस, जैसे कि प्लेन होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग, यस ओके। एंड अदर सरफेस, जो पीछे वाला जो सरफेस होता है, दैट इज वन है नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। एंड इट इज टोटली कोटेड बाय द रेड ऑक्साइड से। यहाँ पे क्या किया जाता है, वो कोटेड किया जाता है, लेड ऑक्साइड से कोटेड किया जाता है ना बेटा। पारद बोलते हैं हम इसको, पारद सम्मिश्र से रेड कलर का होता है एक्चुअली। इसके बाद अभी लेंस में देखते हैं। तो लेंसेस आर टू प्लेन, इसमें भी टू प्लेन होते हैं। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे से ये प्लेन बताए, दो प्लेन से बनाया वाला होता है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। एक्चुअली देखिए बेटा, अभी यहाँ पे दूसरा वाला मिरर को लेकर, इट इज अ सिंगल प्लेन सरफेस ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर से बनने वाला एक सिंगल प्लेन होता है, या सिंगल मीडियम, या सिंगल होता है, एक ही प्लेन सरफेस होता है। लेकिन लेंसेस में जब देखते हैं तो लेंसेस में क्या होता है बेटा, इट इज मेड अप बाय द टू ट्रांसपेरेंट प्लेन, दो ट्रांसपेरेंट प्लेन उसमें होते हैं स्फीयर के कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है बेटा। चलिए अब तो देन यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कर्व related to the mirror, just okay, they are the classified by the different way, that is one have curves को लेकर, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड वन इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हो तो भी वो किसका हिस्सा होता है, स्फीयर का ही होता है, because the mirror is a part of a sphere, mirror is a part of a sphere here। चलिए अभी यहाँ पे लेंसेस को लेकर, अभी जो हम लेंसेस यहाँ पे देखते हैं, तो लेंसेस देखिए बेटा, तो ये कैसे है, यस इट इज बल्जेस, है ना। सेंटर में देखिए बेटा बल्ज होते हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी टैपरिंग टू द एजेस, एजेस की तरफ वो टैपरिंग होते हुए दिखाई देते हैं, यस ओके। एंड टू इट्स दे आर क्लासिफाइड एज अ डबल कॉन्केव, प्लेन कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, बाय कॉन्केव, प्लेन कॉन्केव, concave, convex, yes okay, these are 6 type of the lenses here. So we have learned it, yes, and we have get the somewhat ideas about the mirror and lenses. Actually in this class, yes, we have focus on the lenses here, because our chapter name is a lenses. Before going to the details of lenses, after it we have learned the simple concept of the mirror, how the mirrors are constructed. So I have shown animation effect, how the mirror are constructed here. Actually on the screen I have shown one sphere. Yes, it is a whitish in appearance sphere. It is a, yes, not a 3D diagram, just okay, it is one have a 2D diagram, just okay. And that sphere I have shown on the screen, and when we take the cross section of the sphere, that time we have gets the different parts, different curves. Some surface we have gets in form of curves, some surface we have get in form of a somewhat plane, those are very small in size, and those are one have a larger in size, they have a, actually obviously we have get in a form of sphere there. And actually these cross section areas we have taken from this sphere. So for its I have indicated one red line here, this is an arc, that is a curved line I have taken, that is one of cross section area of that sphere. I have take the section, just so from that cross section area, yes, which is indicated as a red arc line, that is a curved line. Again it's a used as a mirror here. So for constructing its a mirror, I have make the one surface is a coated here, one surface is a totally coated by the lead oxide, ठीक है, that is non reflecting. अभी देखिए बेटा,
and this coated surface I have indicated as a that is a such a lining method. देखिए बेटा मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बनाते जा रहा हूँ, है ना बेटा, and this is a outer surface of the mirror. Outer surface of the mirror. How have decided it is a outer surface? Because it is a coating one. अभी जो inner surface है that is one how reflecting. Inner surface is a reflecting. Actually inner surface यहाँ पे reflecting होगा, तो such a kind of the obtaining mirror we have. Yes, okay. इसको हम ऐसे कौन सा मिरर बोल के हम इसको पहचानेंगे? इसको हमें कौन सा मिरर बोलेंगे बेटा? यस, दिस इज विच टाइप ऑफ मिरर? दैट इज अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव है ना बेटा. कॉन्केव केव कैसी होती है? अंदर से ऐसी, है ना, कर्व होती है. क्यों? गुफा. देखिए क्यों गुहा बोलते हैं ना, तो देखिए जैसे कि अंदर जो है ना यहाँ पे कॉन्केव केव वो रिफ्लेक्टिंग है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है बाहर से मैंने उसको लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है. इसको हमें दैट इज अ रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ द मिरर हियर. ठीक है. जैसे मिरर कौन सा भी हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, वो मिरर सभी मिरर क्या होते हैं बेटा? दिस इज अ और दीज आर द पार्ट ऑफ अ स्पीयर. वो स्पीयर का एक हिस्सा होता है. ठीक है ना. तो देखिए स्पीयर के इसको लेकर मैंने यहाँ पे हाउ टू मिरर यस वी हैव कंस्ट्रक्टेड, इसका जो कंसेप्ट है इसको बताने का यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे किया है. देखिए बेटा मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर. तो स्पीयर हो तो स्पीयर को क्या होता है बेटा? एक यहाँ पे उसका एक सेंटर होता है ना. स्पीयर का एक सेंटर होता है. तो इस सेंटर मैंने यहाँ पे इस लाइन को लेकर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ब्लू कलर की है ना बेटा. अभी जो ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे इस इट एक्ट एज अ रेडिया. ये रेडिया बोल के भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इस रेडिया को लेकर मैंने यहाँ पे एक मुझे सेंटर भी मिलता है. ठीक है बेटा. एक्चुअली अभी ये जो रेडिया है पूरी तरह से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? डायमीटर. जैसे पूरा डायमीटर मिलता है. ठीक है. तो देखिए क्योंकि ये स्पीयर है, एक स्पीयर है, और स्पीयर के हिस्से से ही हमें क्या मिलता है? ऐसे मिरर मिलते हैं. लेकिन मिरर एक सरफेस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरा वाला दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट होता है. एक रिफ्लेक्टिव होता है, एक नॉन रिफ्लेक्टिव होता है. ठीक है. एक कोटेड होता है और दूसरा नॉन कोटेड होता है, जैसे कि शाइनिंग होता है. ठीक है. तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है. मीन्स द मिरर आर कंस्ट्रक्टेड जस्ट ओके एंड दोज आर द पार्ट ऑफ अ स्पीयर. दोज आर द पार्ट ऑफ द स्पीयर हियर. एक्चुअली देखिए बेटा, तो मिरर ऐसे बनते हैं, कॉन्केव हो सकते हैं और कॉन्वेक्स हो सकते हैं. कॉन्केव और कॉन्वेक्स. अभी इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? जो अंदर की तरफ कैसा होता है बेटा? शाइनी होता है ना, रिफ्लेक्टिंग होता है, और बाहर वाला कोटेड होता है, दैट इज अ कॉन्केव मिरर. और जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग होता है, शाइनी होता है, अंदर से कोटेड होता है, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. और हर एक मिरर के लिए भी उसका रेडिया होता है, उसका भी सेंटर आर्क होता है. ठीक है बेटा. अभी उसके जो हमें टर्म्स मिलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो ये टर्म्स भी हमें यहाँ पे देखने हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लेंस को लेकर चलना है. ठीक है बेटा. यहाँ पे मिरर को लेकर हमने यहाँ पे हाउ मिरर आर ऑब्टेन्ड. ठीक है. इसको लेकर हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एनिमेशन इफेक्ट के द्वारा इसको क्लियर करने का प्रयास किया है. ठीक है बेटा. तो वी हैव गो टू आवर लेंसेस. हम अभी लेंसेस की तरफ चलते हैं. Let us now start about the lenses. Actually, lenses also part of a sphere here. Lenses also part of a sphere, but it is a one have a transparent. There are two different surfaces of the sphere. They combines with each other and form a lenses. Yes, I am going to get the different type of lenses. So I have tried to here types of the lenses. So on the screen there are different types of the lenses I have shown on the screen. That is a double convex, double concave, plano convex, plano concave. Yes, okay, meniscus,
and these are the one have different lenses. I have tried to show on the screen. Actually, how to identify it means that according to their construction mode, how they puffed, just their different surfaces, how they combines and to form a lens. Yes, and actually appearance, their size, we have named it, we have classified the lenses here. Before it's in previous class we have learned the refraction of light. What you learned there means the ray of light get refracted twice while passing through a lenses. है ना, lenses में से कोई भी लाइट जैसे पास होती है, that time they show the refraction, change in their path, because there are two surfaces are joined, combines there. And beta, once while entering the lenses and once while emerging from the lenses, एक लाइन यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि लेंस के सरफेस में एंटर करती है, तो दूसरी जो लाइट रे होती है तो यहाँ पे क्या करेगी बेटा, यहाँ पे इमर्जिंग, है ना, दैट इज अ जो इनिशिएट करती है लाइट, दैट इज वन है वो इनिशिएटिंग वन देयर, वो यहाँ पे एंटर करेगी और दूसरी यहाँ पे क्या करेगी बेटा, दूसरे सरफेस के बाजू से के सरफेस यहाँ पे इमर्जिंग करेगी। और जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होता है, जैसे एंट्रेंस होता है और इमर्जेंट होता है, तो दोनों पॉइंट की तरफ यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, दैट इज अ रिफ्रैक्शन, बिकॉज द सरफेसेस आर डिफरेंट हियर, टू सरफेसेस हियर, ठीक है ना बेटा। एंड देखिए बेटा यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द रे, जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, इट्स चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम आईने में देखते हैं, मिरर में क्या होता है बेटा, केवल रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, सेम पोजीशन में, सेम ही मीडियम में, वहां पे हमें क्या होते हुए दिखाई देता है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होता या लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट, परावर्तन होता है ऐसे बोलते हैं कुछ। एक्चुअली यहाँ पे वैसा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम दो होने के कारण जैसे लाइट इंटर होते हैं और पास थ्रू द लेंस होते हैं, दैट टाइम इंटरेंस होते हुए उसका अलग सा यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन होती हुई दिखाई देता है, और जैसे इमर्जेंट होता है लाइट तो वहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे अलग सा होती हुई दिखाई देता है ना बेटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन बनती हुई दिखाई देगी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन नहीं बनती है ना बेटा। तो देखिए बेटा, बोथ सरफेस ऑफ मोस्ट लेंसेस आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि ये अलग अलग जैसे स्फीयर के अलग अलग सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं और दो सरफेस हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या बनता है बेटा, लेंस बनता है। अब ये दो सरफेस से कैसे कनेक्ट होते हैं इसको डिटेल हम कल देखेंगे, तो यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देके देखना है, यस, और थ्योरी को भी रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।